اور خبروں کی شروعات مصر سے کریں گے، جہاں کے سابق صدر حسنی مبارک کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی وفات کی خبر مصر کے سرکاری ٹیلی ویژن پر آج نشر کی گئی۔ حسنی مبارک کی عمر 91 سال تھی۔ مصر کے سابق صدر حسنی مبارک نہیں رہے۔ حسنی مبارک کا قاہرہ میں انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 91 برس تھی۔ حسنی مبارک کی وفات کی خبر 25 فروری کو مصر کے سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر کی گئی۔ اس سے قبل الوطن نامی نیوز ویب سائٹ پر خبر دی گئی تھی کہ حسنی مبارک کی وفات ملٹری اسپتال میں ہوئی ہے۔ رواں برس جنوری کے اواخر میں ان کی سرجری ہوئی تھی۔ حسنی مبارک کو سن 2011 میں فوجی اقدام کے ذریعے ان کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا۔ حسنی مبارک کا دور 3 دہائیوں پر محیط تھا، پھر عرب اسپرنگ کی لپیٹ میں مصر بھی آیا۔ حسنی مبارک کے خلاف انقلاب کے دور میں مظاہرین کی ہلاکتوں میں ملوث ہونے کا جرم ثابت ہوا تھا، لیکن پھر اس سزا کو کالعدم قرار دیا گیا اور انہیں مارچ 2017 میں رہا کر دیا گیا تھا۔ حسنی مبارک کے طویل اقتدار کے خلاف قاہرہ، اسکندریہ، سویز اور مصر کے کئی دیگر شہروں میں ہوئے احتجاجی مظاہروں کو روکنے کے لیے فوج کا استعمال کیا گیا تھا، جس میں خیال کیا جاتا ہے کہ 800 سے زیادہ لوگوں کی جان گئی تھی۔ 18 دنوں تک چلے ان مظاہروں کی وجہ سے 30 سال تک اقتدار میں قابض رہنے کے بعد حسنی مبارک کو صدر کا عہدہ چھوڑنا پڑا تھا۔ حسنی مبارک نے مظاہرین کے قتل کے احکامات دینے کے الزامات سے انکار کیا تھا اور زور دے کر کہا تھا کہ تاریخ انہیں ایک محب وطن کے طور پر یاد کرے گا جس نے اپنے ملک کی خدمت بے لوث انداز سے کی۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے مصر کے سابق صدر حسنی مبارک کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ نتنیاہو نے اپنے تعزیتی پیغام میں حسنی مبارک کو اپنا بہترین دوست بتاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ اسرائیل میں امن استحکام کی کوششیں کی۔ אזרחי ישראל ובשם ממשלת ישראל אני רוצה להביע צער עמוק על לכתו של הנשיא חוסני מובארק. הנשיא מובארק, ידיד אישי שלי, היה מנהיג שהוביל את עמו לשלום וביטחון, לשלום עם ישראל. נפגשתי איתו פעמים רבות, התרשמתי מהמחויבות שלו, ואנחנו נמשיך ללכת בדרך המשותפת הזאת. אני מבקש לשלוח תנחומים לנשיא סיסי, למשפחת מובארק. اور بات دہلی فساد کی کریں گے۔ شمال مشرقی دہلی کے کچھ علاقوں میں تشدد کے تازہ واقعات رونما ہوئے ہیں، تاہم پولیس نے اس پر قابو پا لیا ہے۔ دہلی پولیس نے ایک پریس کانفرنس میں یہ جانکاری دی۔ پولیس کے مطابق تشدد میں اب تک 1 پولیس اہلکار سمیت 10 کی موت ہوئی ہے، جبکہ 56 پولیس اہلکار اور 130 عام لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس نے افواہوں پر یقین نہیں کرنے اور امن و امان کو بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے۔ پولیس کے مطابق ڈرون سے تشدد زدہ علاقوں پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ شمال مشرقی دہلی میں کل تمام اسکول بند رہیں گے۔ ساتھ ہی سی بی ایس ای نے شمال مشرقی دہلی میں بدھ کو ہونے والے امتحانات کو ملتوی کر دیا ہے۔ کہ ابھی جو ایریاز ہیں، نارتھ ایسٹ کے ایریاز ہیں، سچویشن پوری کنٹرول میں ہے، لیکن کئی جگہ پہ جو اسٹرے انسیڈنٹس ہیں وہ ہو رہے ہیں اور پولیس اس کو رسپونڈ کر رہی ہے۔ اسی دوران ہمارے 56 پولیس پرسنلز کو چوٹیں آئی۔ انفارچونیٹلی ہم نے ایک ساتھی اپنا ہیڈ کانسٹیبل رتن لال، جیسے آپ سب جانتے ہیں، اس کو کھو دیا۔ اس کے علاوہ 2 آئی پی ایس آفیسرز ہیں، ان کو چوٹ آئی۔ ڈی سی پی شادرا کو بھی ہیڈ انجری ہے، انڈر آبزرویشن ہے، اور باقی 56 پولیس پرسنلز کو چوٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 156 اس کے علاوہ 130 جو پبلک پرسنلز ہیں ان کو چوٹ ہے، ان کو بھی ہاسپٹلز میں شفٹ کیا گیا۔ نارتھ ایسٹ ڈسٹرکٹ میں سفیشینٹ فورس ڈپلوائے کی گئی ہے، اور کچھ کوارٹرز میں یہ خبر تھی کہ جو فورس ہے اس کی کمی ہے۔ اس کو بالکل ہم کھنڈن کرتے ہیں، ڈینائی کرتے ہیں۔ سفیشینٹ فورس ڈپلوائے کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایم ایچ اے سے آگے بڑھیں گے۔ ہندوستان کے 2 روزہ دورے پر آئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے دورے کے دوسرے دن باہمی گفتگو کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم مودی نے جہاں ہند امریکہ رشتوں کی نئی بلندی کا ذکر کیا، وہیں صدر ٹرمپ نے اپنے ہندوستان دورے کو یادگار بتاتے ہوئے ہندوستان کے ساتھ $3 ارب کی ڈیفنس ڈیل کا بھی اعلان کیا۔
दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बाहमी बातचीत हुई। इसके बाद दोनों लीडरों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर वजीर आजम मोदी ने ट्रंप के अपने अहले खाना के साथ हिंदुस्तान आने पर खुशी का इजहार करते हुए हिंद अमेरिका के दरमियान ट्रेड डील पर इत्तेफाक होने की बात कही। राष्ट्रपति ट्रंप और मैंने हमारे संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। संबंधों को इस मुकाम तक लाने में राष्ट्रपति ट्रंप का अमूल्य योगदान रहा है। फ्रेंड्स, आज हमारी चर्चा में हमने इस पार्टनरशिप के हर अहम पहलू पर सकारात्मक विचार किया, चाहे वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी हो, एनर्जी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन हो, ग्लोबल कनेक्टिविटी हो, ट्रेड रिलेशंस हो या फिर पीपल टू पीपल टाइज। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ता रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक बहुत अहम हिस्सा है। अत्याधुनिक रक्षा उपकरण व प्लेटफॉर्म पर सहयोग से भारत की डिफेंस क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स एक दूसरे की सप्लाई चेन्स का हिस्सा बन रहे हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस हिंदुस्तान दौरे को इंतहाई यादगार और मुस्बत करार दिया। साथ ही सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका ने 3 अरब अमेरिकी डॉलर के डिफेंस समझौते पर मुहर लगा दी है। I know Prime Minister Modi will agree that this has been a very productive visit for both of our countries. Earlier today, we expanded our defense cooperation with agreements for India to purchase more than $3 billion of advanced American military equipment, including Apache and MH-60 Romeo helicopters, the finest in the world. These deals will enhance our joint defense capabilities as our militaries continue to train and operate side by side. मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक शिद्दत पसंदी से अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पाबंद अहद हैं। ट्रंप ने कहा कि दोनों मुल्क मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल की शाम मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दीगर ममालिक के मुकाबले में हिंदुस्तान में ज्यादा मजहबी आज़ादी है। ट्रंप ने सीए को हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला बताते हुए कहा कि पीएम मोदी से इस ताल्लुक से उनकी बात नहीं हुई है। साथ ही ट्रंप ने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा इससे 2 मुल्कों के दरमियान बाहमी मामला बताया। President, my question is that you said at the time of the Article 370 abrogation that you would like to mediate in Kashmir, but India rejected it. No, I'd like to be able to. No, excuse me. My question. Wait. I didn't say that. I didn't say anything about that. I just said Kashmir, obviously, there's a big problem between Pakistan and India. And I think they're going to work out their problem, but I will say they've been doing it for a long time. Okay, my question is something different at the moment. इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मिलेनिया ट्रंप का राष्ट्रपति भवन में शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उसके बाद ट्रंप ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी की समाधि राजघाट जाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आगे बढ़ेंगे। गजा पट्टी के इलाके में सरगर्म फिलिस्तीनी जिहादी तंजीम इस्लामी जिहाद ने इजराइल के साथ जंगबंदी का ऐलान कर दिया है। पीर की शब से इस जंगबंदी पर अमल शुरू हो चुका है। यह जंगबंदी मिस्र और दीगर बैनुल-अक़वामी कुव्वतों की सालसी के नतीजे में अमल में आई। इजरायली फौज ने तस्दीक की है कि इस फैसले पर अमल दरामद शुरू होने के बाद से अब तक गजा पट्टी से इजराइल की तरफ मजीद कोई रॉकेट फायर नहीं किया गया। इससे पहले इस्लामी जिहाद ने जनूबी इजराइल में कई रॉकेट दागे थे, जिसके जवाब में इतवार और पीर की दरमियानी शब इस्राइली फौज ने फजाई कार्रवाई करते हुए इस फिलिस्तीनी तंजीम के ठिकानों को निशाना बनाया था। आगे बढ़ेंगे। लीबिया का रुख करेंगे, जहां हुकूमत और हरीफ जंगी सरदार खलीफा हफ्तर के दरमियान अमन बातचीत नाकाम हो गई है। काबिल गौर है कि लीबिया में जारी तनाज़े के हल के लिए तकरीबन 10 माह से हो रही अब तक की तमाम कोशिशों का
कोशिशें एक तरह से नाकाम साबित हुई हैं। लीबिया में हुकूमत और खलीफा हफ्तर के दरमियान अमन मुज़ाकरात नाकाम। हुकूमत और हरीफ जंगी सरदार खलीफा हफ्तर के दरमियान अमन बातचीत नाकाम। तकरीबन 10 माह से हो रही कोशिशों को नहीं मिली कामयाबी। लीबिया में खलीफा हफ्तर की हामी लीबियन पार्लियामेंट का कहना है कि चूंकि उसके तमाम 13 नुमाइंदों को तस्लीम नहीं किया गया है, इसलिए अब वो अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता बातचीत में शामिल नहीं होगा। ये ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा के स्पोर्ट मिशन के उस ऐलान के चंद घंटों बाद ही आया जिसमें कहा गया था कि फरीक़ैन ने जंगबंदी से मुताल्लिक़ एक मुआहदा तैयार कर लिया है और आइंदा माह से दोनों बातचीत का बाकायदा आगाज करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते खलीफा हफ्तर की जंगजुओं की जानिब से तराबलिस के बंदरगाह पर हमले के बाद भी बातचीत नाकाम हो गई थी। हालांकि बाद में उसी हफ्ते फोर्सेस को वापस बुला लिया गया था। लीबिया के वजीर आजम फाइजुल सिराज ने दारुल हुकूमत तराबलिस पर शेलिंग के लिए खलीफा हफ्तर की फोर्सेस को जिम्मेदार ठहराते हुए इन्हें जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दिया। वजीर आजम फाइजुल सिराज ने उसके खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए आलमी बिरादरी पर भी नुक्ताचीनी की थी। उनका कहना था कि उन्होंने तशद्दुद और लोगों को जबरन बेघर करने जैसे वाकयात की तफ्तीश के लिए कई बार इंक्वायरी। रुकन पार्लियामान का कहना है कि मुमकिना तौर पर महातिर मोहम्मद ही मलेशिया के वजीर आजम बनेंगे। महातिर मोहम्मद ने अनवर इब्राहिम के साथ मिलकर 2018 में साबिक वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक की पार्टी को इंतखाबात में शिकस्त दी थी, जिसके बाद शराकत इक़्तिदार का एक मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत आधी मुद्दत के लिए महातिर मोहम्मद जबकि बकिया मुद्दत के लिए अनवर इब्राहिम को इक़्तिदार मिलना था। ताहम ऐसा माना जा रहा है कि महातिर मोहम्मद समेत बाज़ सियासी रहनुमा अनवर इब्राहिम को वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहते, लिहाजा महातिर मोहम्मद ने अनवर इब्राहिम को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए गुज़िश्ता चंद रोज से हरीफ सियासी जमात यूनाइटेड मलायाज नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुज़ाकरात शुरू कर रखे थे। अनवर इब्राहिम को हमजिन्स परस्ती के इल्जामात के तहत 5 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। अलबत्ता शाही फरमान के जरिए उनकी ये सजा खत्म की गई थी। वो 90 की दहाई में अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात से कब्ल महातिर मोहम्मद के साथ बतौर नायब वज़ीर आज़म काम कर चुके हैं। मलेशिया के आइन के मुताबिक किसी भी कानून साज को पार्लियामेंट में हुकूमत साजी के दावे की बादशाह से मंजूरी लेना जरूरी है। वाज़ेह है कि 24 फरवरी को महातिर मोहम्मद ने अचानक वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद मलेशिया में सियासी बहरान पैदा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। चीन में कोरोना वायरस से हलाकतों का सिलसिला लगातार जारी है। चीन में मौजी वायरस से हलाकतों की तादाद 2600 से तजावुज कर चुकी है, जबकि मुतासरीन की तादाद तकरीबन 78,000 पहुंच चुकी है। चीन में कोरोना वायरस से हलाकतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मूजी वायरस की वजह से मजीद 71 अफराद ने दम तोड़ दिया है। चीन में वायरस से हलाकतों की तादाद 2663 तक जा पहुंची है। चीन की नेशनल हेल्थ कमीशन ने 508 नए केसेस की तस्दीक की है, जिसके बाद इस मुहलिक वायरस से मुतासिर अफराद की कुल तादाद 77,685 हो चुकी है। चीन ने कोरोना वायरस फैलने का सबब बनने वाले जंगली जानवरों की तिजारत पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। चीन की आला कानून साज कमेटी ने चीन में तमाम तर वाइल्ड लाइफ की तिजारत और उन्हें बतौर खुराक इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद करने पर गौर करने के बाद इन जानवरों की खरीद फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। चीन में इन जानवरों को ही मूजी कोरोना वायरस के फैलने का अहम सबब करार दिया जा रहा है। चीन से फैलने वाले जानलेवा कोरोना वायरस के केसेस दीगर ममालिक से भी तेजी से फैल रहे हैं। चीन के बाद कोरोना वायरस जनूबी कोरिया में भी तेजी से फैल रहा है, जहां 60 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसके बाद मजमूई तादाद 900 के करीब पहुंच गई है। ईरान में भी कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। ईरानी हुकूमत ने वायरस से अब तक 12 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की है, जबकि मुतासिर अफराद की तादाद 60 के करीब है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि इनका मुल्क बहुत जल्द इस मुहलिक वायरस पर काबू पा लेगा। हसन रूहानी ने कहा कि लोगों में खौफ दहशत फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अवाम वजारत सेहत की हिदायत पर अमल करें। तेज़ी से फैलते हुए कोरोना वायरस के बास पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान और आर्मेनिया ने ईरान से मुल्हिका अपनी सरहदें बंद कर दी हैं। थाईलैंड ने भी
कोरोना वायरस के 2 नए केसेस की तस्दीक की है। थाई हेल्थ हुक्काम के मुताबिक रिपोर्ट होने वाले 2 मरीजों में एक खातून है जिनके अहले खाना चीन का सफर करते रहे हैं, जबकि दूसरा मरीज चीनी सयाहों का ड्राइवर है। थाईलैंड में मजमूई मुतासरीन की तादाद 37 हो चुकी है। वियतनाम में भी 16 अफराद मूजी वायरस का शिकार हो चुके हैं। वियतनाम हेल्थ हुक्काम का कहना है कि 13 फरवरी के बाद से कोरोना वायरस का कोई नया केस सामने नहीं आया है। इटली, बहरीन, कुवैत, इराक और अफगानिस्तान में भी कोरोना वायरस के मरीज पाए गए हैं। जापान के वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे ने कहा है कि उनका मुल्क इस वायरस से निपटने के लिए नई हिकमत अमली तरतीब दे रहा है, जिसकी रूह से मुलाजमीन को अपने घरों से ही काम करने की तरगीब दिलाई जा रही है। साथ ही मेडिकल सहूलतों को भी मजीद बेहतर बनाया जा रहा है ताकि इस मुहलिक वायरस से मुतासर अफराद की इलाज बेहतर ढंग से हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर ईरान में कोरोना वायरस से खुद ईरान के नायब वजीर सेहत भी मुतासिर हैं। ईरान के नायब वजीर सेहत इराज हरीरची ने खुद इसकी जानकारी मीडिया को फराहम कराई। उन्होंने बताया कि जांच के बाद उनमें कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। آموزشی و هشدار و اینا که مردم بدونن انجام شده بود و الان تو این وضعیتی که هستیم با توجه به ثباتی که در قم پیدا کردیم، قم هم الان وضعیتش تقریبا از شبت خدمتون با ثبات هست. البته یه تعدادی از شهر قم مثلا بنا بگم یکی هم یه اشتباهی دو تا درخواست دارم، یه اشتباهی نکنن، فکر نکنن که आगे बढ़ेंगे। सूडान में सियासतदानों की बदउनवानी कहत का सबब बन रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बदउनवानी और सियासी चपकलिशों की वजह से सूडान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जन्म ले रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के ओहदेदारों का कहना है कि सूडान में सियासी बदउनवानियों का बोलबाला है और सियासी मुखासमत अपने उरूज पर है, जिसकी वजह से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जन्म ले रही हैं और ये जुनूबी सूडान में नस्ली तनाज़े की बड़ी वजह बन रही है। अक़वाम मुत्तहिदा का अंदाज़ा है कि दिसंबर 2013 के बाद से जब से जुनूबी सूडान का तनाज़ा शुरू हुआ है 50,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और अंदरून मुल्क पनाहगुज़ीनों के तौर पर 40 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। इंसानी हुकूक कमीशन के मुताबिक आबादी के 55% से ज्यादा हिस्से को, जिनमें खास तौर पर औरतें और बच्चे शामिल हैं, खाने के लिए मुनासिब मिकदार में खुराक मौजूद नहीं है। इसकी वजह यह है कि मुतहरिफ फरीक इमदादी इदारों को इन तक रसाई से रोक रहे हैं। कमीशन का कहना है कि लोगों को जानबूझकर फाका कशी का शिकार किया जा रहा है और ये काम नस्ली और सियासी खतूत पर किया जा रहा है, जो मुखालिफ बिरादरियों को बुनियादी सहूलतों से महरूम रखने की एक कोशिश है। कमीशन ने कहा कि लोगों को फाका कशी में मुब्तला करना एक जंगी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, जिस पर मुकदमा चलना चाहिए। कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत बदउनवानी की बुरी तरह लपेट में है। रिपोर्ट में इल्जाम लगाया गया कि सरकारी ओहदेदार कौमी खजाने को लूट रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तेल की आमदनी और हर महीने हासिल होने वाले महसूलात के 80% का कोई हिसाब किताब नहीं है, इसलिए सियासतदानों ने इसे सरकारी खातों से कहीं और मुंतकिल कर दिया है। 56 सफ़हात पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट में तनाज़े के तमाम फरीक़ैन की जानिब से बड़े पैमाने पर की जाने वाली होलनाक खिलाफ वर्जियों की तफसीलात बताई गई हैं। रिपोर्ट में 12 साल की उम्रों के बच्चों की फौजियों के तौर पर भर्ती, जिनसी तशद्दुद, माल मवेशियों की चोरी की जालिमाना वारदातों का भी जिक्र किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और बात अजमेर उर्स की करेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 808वें उर्स में आने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन के ठहरने की जगह का आज अजमेर ज़िला इंतज़ामिया के ओहदेदारों ने जायज़ा लिया। हर साल पाकिस्तानी ज़ायरीन को अजमेर के नया बाजार में सेंटर गर्ल्स स्कूल में ठहराया जाता है। आज इंतजामी अफसरान ने हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने के लिए स्कूल का दौरा किया। हालांकि पाकिस्तान के ज़ायरीन वहां से दरगाह ज़ियारत करने कैसे पहुंचेंगे, इस बारे में जिला कलेक्टर ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आज जो पाकिस्तान से ज़ायरीन आ रहे हैं उसमें शामिल होने, उनके लिए जो व्यवस्थाएं की जानी है उसके संबंध में निरीक्षण किया गया है और सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे नगर निगम
اور PWD PhD سبھی ڈپارٹمنٹس کو نردیش دے دیے ہیں. پولیس کے دوارا سرکشا کی جو جانچ کی جانی ہے, ان کی سرکشا کی ویوستھا کی جانی ہے, اس کے لیے بھی آج انہوں نے اپنی جو ہے پراتھمک نریکشن کر لیا اور 28 تاریخ کو ان کا کارکرم ہے. تو امید کرتا ہوں کہ ساری چیزیں جو ویوستھائیں ہیں اس سمے سے پہلے ہم لوگ پورا کر لیں گے. پاکستان کے صوبہ پنجاب کی کابینہ نے لندن میں زیر علاج پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی ضمانت میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کابینہ کے فیصلے کے مطابق نواز شریف سے جو طبی رپورٹس طلب کی گئی تھیں وہ فراہم نہیں کی گئیں, جبکہ دستیاب رپورٹس کی بنیاد پر خصوصی کمیٹی اور میڈیکل بورڈ مزید توسیع دینے کے خلاف تھے. پنجاب کے وزیر قانون راجہ بشارت نے منگل کو کابینہ کے اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ 17 جنوری کو میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کے معالجین نے خصوصی نکات پر معلومات طلب کی تھیں, مگر جب ان کی طرف سے مطلوبہ رپورٹس فراہم نہیں کی گئیں تو کمیٹی نے انہیں رپورٹس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جو کہ پہلے فراہم کی گئی تھی. ہندوستان اور برطانیہ کے درمیان مشترکہ فوجی مشق ہو رہی ہے. ایجیا وائر اختتام پذیر ہو گئی ہے. اختتامی تقریب آج برطانیہ کے ویسٹ ڈاؤن کیمپ سیلس بری پلینس ٹریننگ ایریا میں منعقد ہوئی. تقریب میں برطانیہ میں تعینات ہندوستان کے ڈپٹی ہائی کمشنر چرنجیت سنگھ کے علاوہ ہندوستان اور برطانوی فوج کے دیگر اعلی افسران بھی موجود رہے. آپ یہ خاص رپورٹ دیکھیے اور مجھے اجازت دیجیے. آداب. ہندوستان اور برطانیہ کے 2 ہفتے لمبی مشترکہ فوجی مشق اختتام پذیر ہوئی. اس میں شہری اور نیم شہری علاقے شامل تھے. اس مشق کے دوران دہشت گرد کارروائیوں کا مقابلہ کرنے سے متعلق ڈرلز اور دیگر طرح کی تربیت کی ریہرسل کی گئی اور مشترکہ طور پر یہ سرگرمیاں عملی طور پر انجام دی گئیں. اس مشق میں دونوں ممالک کی فوج کی جانب سے دوستانہ اور خوش مزاجی کا مظاہرہ سب سے خاص رہا. اس سے یقینی طور پر یکجہتی اور کامیابی کے ساتھ تمام سطحوں پر اس طرح کی مشترکہ کوششوں کی راہ ہموار ہونے کے امکانات نظر آتے ہیں. یہ مشترکہ تربیت کافی سود مند ثابت ہوئی اور اس کے ذریعے دہشت گرد کارروائیوں سے نمٹنے کے لیے لازمی معیارات کو حاصل کرنے میں کامیابی مل پائی ہے. اس کے علاوہ اہم لیکچرز بھی اس تربیتی مشق کا حصہ رہے. یہ مانا جا رہا ہے کہ اس مشق کے ذریعے دونوں ملکوں کے درمیان رشتے مزید مضبوط ہوں گے. To welcome the soldiers from 14th Dogra here to Salisbury Plain and Copehill Down Village, where they're exercising in a counterinsurgency environment. UK and India have a strong shared DNA from a military perspective, and it's a part of our remit to look at interoperability between the two countries, particularly